پاکستانی فوج نے آج پھر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنچ کے شاہپور قصبہ کیرنی اور مالٹی سیکٹر میں فوج کی چوکیوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر زبردست گولہ باری کی۔ ایل او سی کے علاقوں میں خوف کا ماحول ہے۔ پاکستان کی گولہ باری کا ہندوستانی فوج نے بھی معقول جواب دیا۔ اس بیچ منکوٹ سیکٹر میں پاکستانی فوج کے سنائپر فائر نے ایک فوجی جوان کو زخمی ہو گیا تھا۔ حوالدار نرمل سنگھ نامی جوان کو بعد میں ایئر لفٹ کر کے آرمی اسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ یہاں پر قریب 10 سال سے گولہ باری اور فائرنگ چل رہی ہے، تو جب بھی فائرنگ ہوتا ہے دونوں وار سے لوگوں کے دل میں بہت خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بینکر بنے ہوئے وہ تو ان میں چلے جاتے ہیں، باقی جو لوگ بہت گھبراتے ہیں اور ان کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا مال مویشی نقصان ہوتا ہے اور جانے جاتے۔ پنچ میں ایل او سی پر چکاداباغ میں پی او کے کی طرف سے لگائی گئی آگ ہندوستانی علاقے تک پہنچ گئی ہے۔ آگ سے علاقے میں بھاری نقصان پہنچا ہے۔ آگ کی وجہ سے ایل او سی پر دہشت گردوں کی دراندازی کو روکنے کے لیے بچھائی گئی بارودی سرنگوں میں دھماکے ہوئے اور وہ تباہ ہو گئے۔ فوج کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ پی او کے سے اکثر بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کے لیے ایل او سی کے علاقوں میں آگ لگائی جاتی ہے تاکہ ملیٹنٹوں کی دراندازی کو آسان بنایا جا سکے۔ نوجوانوں کو ملیٹنسی کی جانب راغب کرنے کے لیے ملیٹنٹ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ ادھر پولیس بھی اس سلسلے میں متحرک ہے اور ملیٹنٹوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے لگاتار حکمت عملی تبدیل کی جاتی ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے اے ڈی جی مکیش سنگھ کا کہنا ہے کہ ملیٹنٹ سوشل میڈیا ایپلیکیشنز تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ فورسز انہیں ٹریک نہ کر پائے۔ سنگھ نے تاہم کہا کہ فورسز بھی مسلسل ضروری تبدیلی کر کے ان کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹوں کے بیشتر اکاؤنٹ فرضی ناموں پر ہوتے ہیں۔ یہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے اور استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انکرپٹڈ ہے اور اس کو جلدی اس پہ نظر رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو یہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم بھی کاؤنٹر میجرز لیتے رہتے ہیں، الگ الگ میجرز لے کے ہم ان پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشنس ہیں اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری نظروں سے بچ سکے، لیکن پھر بھی ہم بھی جیسے جیسے وہ اپنے اسٹریٹجیز کو چینج کرتے ہیں ہماری اسٹریٹجی بھی اسی حساب سے چینج ہوتی ہے، اور ہم کافی حد تک سوشل میڈیا کے ذریعے جو یہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے کوشش یا ویپنز کے ٹرانسپورٹیشن کی خبر جو پہنچائی جاتی ہے ان سب پہ بھی ہم نظر رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو ٹیررسٹ ہے وہ اپنے نام سے یا اپنے آئیڈینٹی سے وہ اکاؤنٹ نہیں بناتا ہے، اکثر یہ فیک اکاؤنٹ سے ہی بنا کے ایک دوسرے کو چیٹ کرتے ہیں اور انہی کو وہ اپنی اصلی آئیڈینٹی بتاتے ہیں جن پہ ان کو اعتبار ہو جاتا ہے کہ یہ ہاں واقعی یہ ہمارے ساتھ کا انسان ہے اور ہمارے ٹیرر فولڈ میں آنے کی شمتا رکھتا ہے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر صدارت جموں میں یونیفائیڈ کمانڈ کی میٹنگ منعقد کی گئی۔ اجلاس میں جموں کشمیر انتظامیہ، جموں کشمیر پولیس، فوج، سی آر پی ایف اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سینئر افسران موجود تھے۔ ایل جی نے جموں کشمیر اور سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششوں اور اقدامات کو زمین پر ہم آہنگ کریں۔ ایل جی نے یوٹی میں پرامن ماحول کے لیے انہیں مبارکباد پیش کی۔ سری نگر کے کچھ حصوں میں آج مکمل ہڑتال رہی۔ 1990 میں آج ہی کے روز پیش آئے گو قتل واقعے کی یاد میں یہ ہڑتال کی گئی تھی۔ لال چوک اور ملحقہ علاقوں میں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے۔ شہر میں ٹریفک کی نقل و حمل معمول کے مطابق رہی۔ واضح رہے کہ کسی تنظیم یا گروپ نے ہڑتال کی کال نہیں دی تھی، مگر لوگوں نے خود ہڑتال کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گاؤں قدل میں سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ میں 52 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ، سیاحتی، کلچرل اور شہری ہوابازی نے سری نگر میں کئی وفود سے ملاقات کی۔ یہ میٹنگ سری نگر کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، سیاحت سے جڑے افراد، تاجروں اور کلچرل وفود نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے اپنے مسائل کے بارے میں جانکاری دی۔
वज़ीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मीटिंग में शरीक रहे। मीटिंग के दौरान कौमी शाहराह का मुसलसल बंद रहना, तिजारत को हुए नुकसान, हवाई किराए में इजाफे जैसे मसाइल खास तौर पर उठाए गए। कश्मीर में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी तबादले ख्याल हुआ। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। सामने हमने सारे इश्यूज रखे। जो प्रेजेंट इशू हमारे पास है कि नेशनल हाईवे 10-15 दिन 2021 में नेशनल हाईवे जिस यूटी और स्टेट की बंद रहे तो उसकी इकोनॉमिक हालात क्या हो सकते हैं, लोगों की हालात क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी हैं। ट्रांसपोर्ट में हमें एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा सीधा कहना है कि लोगों के काम कैसे हो। हमने वेरियस सजेशंस दिए हैं। इसमें मेन जो मुद्दे उनमें हमने उबारे वो तो एक था कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। आपको पता ही है आए दिन हमारा रोड जो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर वो आए दिन बंद रहती है और एक दिन के लिए नहीं, कभी कभी 6-7 दिन 8 दिन तक ये लंबा खींचता जा रहा है। तो एक इम्पीडिमेंट है जो टूरिज्म को यहाँ बढ़ाने में मुश्किल पैदा करता है। और दूसरी जो हमारी एयर कनेक्टिविटी है उसको उन्होंने इतना एग्जॉर्बिटेंट बनाया है जो सिर्फ बड़े लोग ही उसमें वो कर सकते हैं। 12-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये की एयर टिकट जो दिल्ली से श्रीनगर आना चाहते हैं। मरकज़ से आया 31 मेंबरा वफद आज यहाँ वादी कश्मीर में कई वफूद से मुलाकात हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिन भर जो है मुलाकातों का सिलसिला यहाँ जारी रहा। ख़ास तौर कई सियासी और समाजी तंजीमों के साथ साथ कई कारोबारी इदारे, कारोबारी तंजीमें जो हैं वो भी यहाँ इस वफद से मुलाकात हुए हैं। जो अहम मुद्दे जो हैं वो नेशनल हाईवे को बहाल करने के मुद्दे हैं, टूरिज़म जो इंडस्ट्री जो यहाँ पर हिट हुई है बहुत बुरी तरह से उसको रिवाइव करने के मुद्दे, या फिर एयरफेयर कनेक्टिविटी जो है उसको किस तरह से काबू में रखा जाए, ऐसे ऐसे मुद्दे यहाँ पे ज़्यादातर उठाए गए। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये जो डेलीगेशन आया है यहाँ पे ये जो मसाइल है इनको मरकज़ के साथ उठा के इनका अजाला करेगी। ताहम जो पिछली जो डेलीगेशंस आए हैं उनमें यही देखा गया है कि जो यहाँ पे लोगों के मसाइल सुने जाते हैं वो फिर वहाँ रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना में महकमे R&B के आरजी मुलाजमीन काफ़ी अरसे से तनख्वाह से महरूम हैं। इस वजह से आरजी मुलाजमीन फाका कुशी पर मजबूर हो गए हैं। अलमिया ये है कि ये लोग दिन रात सड़कों की मरम्मत और दीगर कामों को अंजाम देते हैं, मगर इसके बावजूद वो अपने अहलो अयाल समेत कसमापुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदने से भी कासिर हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि उनके मसले को हल किया जाए। एक बुजुर्ग और चंद दीगर आरजी मुलाजिम ने नम आंखों से कहा कि कभी अगर उनके बच्चे सुबह उनसे चंद रुपया मांगते हैं तो वो अपने बच्चों को चंद रुपया भी नहीं दे पाते हैं। साल से सर हमारे 2019 में हमें पेमेंट कोई नहीं मिली सर, तो हमारे बच्चे भी सर भूखे मर रहे हैं, कपड़े नहीं है लगाने के लिए, स्कूलों की फीस भरने के लिए नहीं है, तो हमारी सर कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे हमें जो भी यहाँ चला रहे हैं हमें अपने ऑफिस वाले 200-200 देते हैं, तनख्वाह नहीं हमें सर कहीं भी, तो हमारे बच्चे भी स्कूल से निकाले गए हैं सर। 20 साल हो गए जब हम काम करते नहीं, हमारे को कुछ पैसा नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम ऐसे गरीब शख्स, हम काम करते करते अभी ऐसे बूढ़े हो गए हैं, बस अब कुछ भी नहीं मिला, कर्जे से हम डूबे हैं सब। तो इसलिए हम ये प्रॉब्लम हमारे को जनाब कुछ होना चाहिए, परमिट भी हम नहीं हो सके जनाब। नहीं हमें तनख्वाह मिलती है, टाइम पर बच्चे भूखे मरते हैं। मैं 2 बच्ची की शादी कराई जनाब, ज़मीन थोड़ी बहुत थी वो भी बिक्री किया जनाब, और बच्चे पढ़ा ही नहीं सके जनाब, दर पदर फिरते जनाब, कोई गुजारा ही नहीं, कोई जरिया माश ही नहीं जनाब। हम यहाँ ही काम करते हैं R&B में जनाब, तो इसलिए हमारी गुजारिश है जनाब गवर्नमेंट से कि हमें परमिट किया जाए और हमारी तनख्वाह भी गुजार किया जाए। हम सुबह घर से निकलते हैं, बच्चे 10 रुपये हमें मांगते हैं, हमारे जेब से 10 रुपये नहीं निकलते हैं सर। हमारी हालात यहाँ तक पहुँच गई है, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ क्या कि हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे। जब बच्चा मांगे हमारे जेब से 10 रुपये नहीं निकलेंगे फिर क्या करेंगे, हमारी क्या ज़िंदगी है सर। आंखों से आंसू, इस टाइम भी दिल रो रहा है सर, क्या दिखाएंगे किसी को, हमारे हालात पे कोई देखते ही नहीं है, क्या देखेंगे किसी को सर। जम्मू में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। PM पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात ये मुलाजमीन किराए की इमारतों में मुकीम है। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत उन्हें सरकारी रिहाइश फराहम करने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि 2010 में नौकरी पर लगने के वक्त उन्हें सरकारी रिहाइश देने का वादा किया गया था। एहतजाजियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे।
एहतजाजियों ने कहा कि किराए के तौर पर वो मोटी रकम देते हैं और उन्हें माकूल सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। उन्होंने एलजी समेत दीगर हुकाम से राब्ता किया है मगर यकीन दहानियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की कि तमाम मुस्तहिक मुलाजमीन को फौरी तौर पर सरकारी रिहाइश अलॉट की जाए। इन्होंने हमें जब ज्वाइनिंग हमने डाली थी तो इन्होंने बोला था आपको एकोमोडेशन के साथ ही आपको ज्वाइनिंग भी डालनी होगी, लेकिन 2010 से आज तक हमें ना तो एकोमोडेशन मिली और सिर्फ अगर हम जाते भी हैं कहीं, चाहे आरसी साहब के पास जाते हैं, सिमरनदीप सिंह जी के पास जाते हैं या एलजी के पास जाते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। 10 से वेट कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। हम तो मतलब बहुत ही दर-बदर हो रहे हैं, बच्चे भी हैं, उनका फ्यूचर भी दर-बदर हो गया। अब जो उसमें ऑलरेडी जो क्वार्टर बने हुए हैं उसमें रह रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो तो रह रहे हैं, लेकिन हमें भी तो मतलब चाहे वो पुराने दो या नए दो, लेकिन मिलना तो हमें भी चाहिए। वो हेल्थ कॉन्फेडरेशन बांडीपुरा के नायब सदर बशीर अहमद टीरू का कहना है कि गुरेज के सख्त तरीन मौसमी हालात में अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बावजूद दर्जे चहारू मुलाजमीन की तरक्की अमल में नहीं लाई गई है। बशीर अहमद का कहना था कि तिब्बी अमले की कमी के दौरान उन्होंने यहाँ के सेहत मराकज़ में काबिल सताइश काम अंजाम दिए, इसके बावजूद उन्हें तरक्की से नवाजने का मामला इल्तवा में है। न्यूज़ 18 का मैं बहुत ही मशहूर हूँ, जो इससे दूर दराज इलाकों में भी हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत साल हुए, बहुत से अरमान लेके हम अभी यहाँ बैठे हैं। काफ़ी सालों से हमारे क्लास 4 के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से पुरजोर अपील करता हूँ कि ये जो रुकावटें हमें आती है किस वजह से आती है। आप बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने के बाद सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल के लिए बाकायदगी से फ़ज़ाई सर्विस चलाई जा रही है। इस सर्विस की वजह से सैकड़ों मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया जाएगा। 1 दर्जन के करीब बीमार भी इमरजेंसी तौर पर इसी सर्विस की बदौलत अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। गुरेज के अलावा तुलेल और बख्तूर के लिए भी ये सर्विस चलाई जा रही है। यूं पूरे खित्ते के लोग इस सर्विस से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो चॉपर सर्विस है वो काफ़ी रेगुलर रही और दिन में जितनी सॉर्टीज़ पॉसिबल हो पाती हैं, यहाँ तक कि 10 सॉर्टीज़ तक भी बांडीपुरा और गुरेज के बीच में रही और उसमें खुसूसन फ़ायदा हो गया जो पेशेंट्स जिनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत होती है, टर्शरी केयर की ज़रूरत होती है। तो अभी तक अगर हम जनवरी के फर्स्ट वीक से देखें और आज तक 11 पेशेंट्स जिनकी हमें SOS कॉल आई उनको इवैक्यूएट किया गया, अलग अलग कैटेगरी के। बर्फबारी के बाद 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां अक्सर गली कूचों से बर्फ हटा चुकी है, लेकिन अभी भी कई गलियों और बाइलेन्स पर बर्फ जमा हुई है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां को बाइख्तियार बनाए ताकि वो सूरत हाल के तकाज़ों के मुताबिक मजदूरों और मशीनरी को इस्तेमाल कर सके। कई मकामात पर बर्फ जमा हुई है जिससे लोग परेशान हैं। के बाद आपका खैर मकदम है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी माह मनाया जा रहा है तो दूसरी जानिब सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता शब जिला डोडा के एक दूर दराज इलाके में कार को हादसा पेश आया। इस दौरान 3 लोग जख्मी हो गए थे। जख्मियों में बाद में 2 दम तोड़ बैठे। बताया जाता है कि गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई में गिर गई। लोगों ने जख्मियों को पहले GMC डोडा मुंतकिल किया। यहां एक जख्मी ने दम तोड़ दिया। दीगर 2 को बाद में जम्मू मुंतकिल किया गया। इस बीच बटूट पहुंचते ही एक और जख्मी की मौत हो गई। इस तरह हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई जबकि ड्राइवर GMC जम्मू में मौत और हयात की कशमकश में है। देवरत्राल का रहने वाला मुख्तार अहमद नामी शख्स कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। मरीज निहायत ही मुफलिस है और इलाज के लिए दरकार रकम उसके पास मौजूद नहीं है। मुख्तार के अहले खाना साहिब सरवत लोगों से अपील करते हैं कि उनकी माली मदद के लिए सामने आए। माली मदद स्क्रीन पर नजर आ रहे अकाउंट नंबर में जमा की जा सकती है या दिए गए फ़ोन नंबर पर राब्ता करें। तमो वोन हस्पताल वालों दोपक ये अमिस लगन 10 लाख रुपये अस ना कह सहारा लकट लकट बच्चस जमीन तस तुम मकान रस खंड बनायन कमर 2 बाकी ना कहें वो अपील कर महज खुदा सुन रजा खतर वह अगर कह कर मरवत तमनी तान
मदद कैंसर बेमार में मुबतला अमिस पोस लगन वारिया बस तमाम कर अपील खुदा से रजा खतर करो अमिस मदद तुम करो खुदा तो खुदा सुन रसूल मदद अमिस कहीं सहर भी तकरीबन डॉक्टर वोन 10 लाख रुपये खर्च मगर अमिस गुजार कहीं ना जमीन ना कहें खानदानस मज कहीं ताकत। वादी कश्मीर में लड़कियों ने पहले ही तालीम व दीगर शोबों में अपना लोहा मनवाया है। अब यहाँ की लड़कियां ऐसे शोबों में भी आगे आ रही हैं जो बज़ाहिर काफ़ी मेहनत तलब होते हैं। उसी की मिसाल जिला गांदरबल की आरिफा बिलाल है। पेश जावेद भट्ट की रिपोर्ट। जिम सेंटर में वर्कआउट में मसरूफ ये हैं कुजर गांदरबल की आयरन लेडी का खिताब रखने वाली आरिफा बिलाल। डिग्री कॉलेज गांदरबल में ज़ेरे तालीम आरिफा को बचपन से ही खेल कूद में काफी दिलचस्पी थी। आरिफा ने अपने इलाके और जम्मू कश्मीर का नाम उस वक्त रोशन किया जब उन्होंने पावर लिफ्टिंग के कौमी सतह के मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मल्टी टैलेंटेड आरिफा ने वॉलीबॉल में भी नेशनल अवार्ड हासिल किया है। उसने क्रिकेट में भी कई अवार्ड अपने नाम करने के अलावा रियासती सतह की मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। स्के मार्शल आर्ट्स में इन्हें ब्लैक बेल्ट हासिल है। हरियाणा में पावर लिफ्टिंग में 100 किलो का वजन उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। से मार्शल आर्ट्स खेलने का शौक था, तो जहाँ कहीं भी इवेंट होता था मैं पार्टिसिपेट लेती थी और धीरे धीरे फिर मैंने स्टेट खेला, फिर नेशनल में मैंने ये गोल्ड मेडल निकाले। फिर मैंने सारे वॉलीबॉल भी खेला, मार्शल आर्ट भी खेला, RDC कैंप में भी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद मैं कुछ यूनिक करना चाहती थी, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। रिसेंटली स्टेट खेला, उसमें वहाँ पे 3 इवेंट हुए, तीनों में मैंने गोल्ड मेडल निकाला। फिर मुझे नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई, फिर वहाँ उसके लिए भी मैंने ट्रेनिंग की, तो वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल ली। आरिफा ऐसी खवातीन में शामिल हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और वो हर मैदान में अपना नाम कमा सकती हैं। वो इलाके की पहली और वाहिद जिम इंस्ट्रक्टर हैं। आरिफा सिर्फ खवातीन को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी सिखाती हैं। आरिफा के सेंटर में ज़ेरे तरबियत लड़के भी उनकी सलाहियतों के कायल हैं और उन जैसी इंस्ट्रक्टर मिलने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, वहाँ पे मैं लड़कियों को भी ट्रेन करती हूँ और लड़कों को भी, और मेरी खुद भी प्रैक्टिस होती है वहाँ पे। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर तनवीर का, जिसने मुझे नेशनल के लिए स्पॉन्सर किया। कि लेडी ट्रेनर यहाँ बैठा था काउंटर पे, तो हमने सोचा कि लेडीज़ के पास मैं क्या कर सकूँगा यहाँ पे। जब मैं इसके पास ट्रेनिंग शुरू किया था तो उससे पहले मेरा 87 kg वेट था, फिर मैं 75 पे आ गया 4 मंथ्स में। तो ट्रेनर बहुत ही अच्छी है, बहुत काबिल, बहुत होनहार लड़की है ये, और गांदरबल से है। खासकर पहली लेडी है JNK में जिनने कल नेशनल गोल्ड निकाला। आरिफा अपनी उड़ान यहीं तक महदूद नहीं रखना चाहती हैं। उनकी नज़र अब बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप पर है। आरिफा तहम मौक़े और वसाइल की कमी से कुछ मायूस हैं। इन्होंने मगर हौसला नहीं हारा है। इन्हें स्पॉन्सर मिलने की अब भी उम्मीद है। आरिफा को उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपने वालिदैन से भरपूर ताउन मिला है। उनके अहले खाना भी अब चाहते हैं कि उनकी लाडली को हुकूमत से कुछ मदद मिले ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। मुझे ऑफर मिल रहा है इंटरनेशनल खेलने के लिए, लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उतना स्ट्रांग नहीं है कि इंटरनेशनल खेल पाऊँ, और मैं चाहती हूँ मुझे कोई स्पॉन्सर मिले इंटरनेशनल के लिए, मैं अपने देश का नाम रोशन करूँ, अपने स्टेट का नाम रोशन करूँ। वुक ताम सपोर्ट करान वस अगर अमिस स्पॉन्स कर यह इंटरनेशनल गिंदित, मगर तीत्या रिसोर्स तीत्या कहें हेकोन इंटरनेशनल सूजित, इसलिए गवर्नमेंटस अपील करान कि तुम करन मदद। आरिफा जैसी बासलाहियत और हुनरमंद लड़की को हुकूमत और स्पोर्ट्स अथॉरिटीज की तवज्जो और हौसला अफजाई की जरूरत है। वो मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जावेद भट्ट की रिपोर्ट।
कश्मीर दौरे पर आई पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर टी.जी. वेंकटेश का कहना है कि वो सयाहत, सरमायाकारी और सनतों को फरोग देने के हवाले से तबादले ख्याल कर रहे हैं। Stakeholders, the tourism development, where number of stakeholders came, yes, highway problems also stakeholders came. We all discussed with them, we have taken all the points, and definitely we will pressurize the ministry to take up all the steps, pending matters to be completed. So now it's a free, the entire country, whoever having money, they can come and invest here, and they can develop also. Local people also, they can develop these projects here. Once tourist is developed, automatically the revenue will be developed, the wealth also will be developed. So that way we are giving a Prime Minister dreams for. पुलवामा के मारूल गांव में महकमे सेहत की जानिब से तवील अरसा कबल हेल्थ सेंटर के लिए इमारत की तामीर अमल में लाई गई, लेकिन आज तक इस हेल्थ मरकज से मारूल और उसके मुल्हक्का देहात की आबादी को किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं हुई है। महकमे सेहत की जानिब से क़याम किया गया हेल्थ मरकज सिर्फ नाम का ही है। आज भी मकामी आबादी को मामूली बीमारी के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। पहले ही ये इलाका फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने और अंदरूनी राब्ता सड़कों की खस्ताहाली से काफ़ी परेशान है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो हमें पांपोर का रुख करना पड़ता है, श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। जबकि हमारे गांव में सब सेंटर था, लेकिन वहां डॉक्टर की अदम दस्तयाबी की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 14-15 वरी डिस्पेंसरी बनमिस ये जन आबुक इंतजाम कहें न पावरुक तथ मेडिकल जरूरत बे डॉक्टर सब जरूरत कम से कम बेड तप तत क्या। ज़र क़वानीन के खिलाफ कठुआ में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाल कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर पंकज डोगरा ने कहा कि वो एहतजाजी किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया, इसलिए वो कठुआ में ही एहतजाज जारी रखेंगे। के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो चाहती है कि किसी तरह दिल्ली का घेराबंदी खाली की जाए। जो झुंझुना वो किसानों को दे रहे हैं, किसान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और किसानों ने स्पष्ट कह दिया है कि 2024 तक जब तक देश में दूसरे चुनाव नहीं होंगे, आम चुनाव, तब तक वो दिल्ली में डेरा डाले रखेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं समझदा ਜਦੋਂ ਦੀ सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई है, ये हाहाकार ही हो रहा। लोग इतने परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान। पिछले 56 दिन तो किसान उत्थे दिल्ली मोर्चा लगा के बैठे थे और निकम्मी सरकार मैं समझदा हिंदुस्तान पहली बारी आई है। किसान मजदूर जो उनके बगैर देश नहीं चल सकता और देश को चलाने वास्ते ये एक रीढ़ की हड्डी ने तो इनकी मदद करनी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।